Welcome to everyone. Today we're going to discuss about the hydroelectric power projects. I hope all of you are doing well. This is me from AR Pravaz Academy. Today, as you can see on your screen, we are going to discuss about the hydroelectric power projects of the JNK and Ladakh. This is the most important topic that you need to revise or you need to remember because in every exam there are always one or two questions that come from this section. So this is very important. Whether you will be either you will be asked about the river on which the hydroelectric power plant is based, or you will be asked about the district of that power plant where it is based, or you will be asked about the potential of that power plant, or you can say generally the potential of you can say the UT of JNK as well. So these are very important questions to answer, and I am sure I am giving you the 100% guarantee that after watching this video, watch this video full, you will have no excuse about any other thing. You will have no excuse about skipping these questions because these are made very simple. And also remember that this is going to be your last source for this topic, that is hydroelectric power projects on JNK, because this is compiled in such a way and you can always have 100% regarding this topic. Now let's start this lecture with the first slide. One more request, as usual, do subscribe to this channel if you are not subscribed so far, and share with your friends. Here is the first slide, and you can see the first question. Actually, this is first question. As you can see the question here, prior to the 2019 reorganization, what was the estimated total hydroelectric potential of the erstwhile state of Jammu and Kashmir? So it's talking about before 2019, what was the estimated total hydroelectric power potential of J&K as a state? J&K as a state. So if we talk about this, and there was a potential of around 20,000 megawatts of J&K state. If we talk about only J&K, but since the bifurcation has been done, now UT of Ladakh is separate, and now you can see that this J&K holds the capacity of around 18,000 megawatt hydroelectric power capacity. So remember the fact, J&K अगर लद्दाख को मिला के देखेंगे तो 2000 एक्चुअली 20,000 20,000 की मेगावाट कैपेसिटी है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल की। लेकिन अगर हम सिर्फ JNK यूटी की बात करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 18,000 यानी कि 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 था, विच रिवर बेसिन इज इन JNK यूटी होल्ड द हाईएस्ट आइडेंटिफाइड इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेबल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा रिवर बेसिन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल, यानी कि आप जनरेट कर सकते हो उस रिवर बेसिन से सबसे ज्यादा। तो ये है आपका चनाब रिवर बेसिन, जिसमें 11,283 यानी कि आप ये याद रख सकते हैं 11,283 मेगावाट का पोटेंशियल यहाँ पे चनाब बेसिन में है। और अगर आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा ये टॉपिक, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हमारे हैं चनाब बेस्ड ही है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वी विल एक्सप्लॉइट इट मोर। एट द सेम टाइम झेलम बेसिन की अगर मैं बात करूँ तो 3,084 मेगावाट्स का यहाँ पे इसका पोटेंशियल है। और अगर मैं इस रावी बेसिन की बात करूँ तो अराउंड 500 मेगावाट्स का यहाँ पे पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है। सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड एग्जामिनर कैन आस्क एनी वन ऑफ दीज फैक्ट्स. Now, moving to the next question, what is the primary reason that most hydroelectric projects on the Jhelum River are of the run of the river type? Why? Here, the question is asking about the reason why the hydroelectric projects that have been developed on the river Jhelum, why are they run of the river type? What is run of the river type river? Any river, run of the river type is anything like you can जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बट यू कैन नॉट स्टोर द वाटर इटसेल्फ। तो वाटर के लिए आप जैसे स्टोरेज डैम्स बनाए जाते हैं वो आप यहाँ पे नहीं बना सकते। आपको अगर यूटिलाइज करना भी है पानी तो आप करिए, लेकिन आप उसमें स्टोर करके नहीं रख सकते। सो दैट दिस इज द रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट, जो कि ज्यादातर हमारे जो रिवर्स हैं जिसमें एक झेलम भी है वहां पे भी ये लागू होता है। वाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ से। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी अगर आपने पढ़ी है तो दिस इज द वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो है ये ट्रीटी यही रिवर्स को ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स में डिवाइड करती हैं, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स पे इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है और वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट झेलम, दिस कम्स इन वेस्टर्न रिवर्स, इसलिए यहाँ पे आप रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, लाइक स्टोरेज डैम टाइप प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। दिस इज द मेन रीजन व्हाई, सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज लोकेटेड ऑन द मारुसदार रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि मारुसदार रिवर पे बेस्ड है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की। मारुसदार रिवर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जेके एसएसबी हैज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चंस अबाउट दिस, सो this is going to be the important question as well. So remember that the Pakal Dul hydroelectric power project, this is on the Marusudar river and this comes in Kishtwar district. This comes in Kishtwar district. This is the river that this is the answer, that is answer would be option number C, Pakal Dul along ये किसके हैं? मारुसदार रिवर पे, जो कि ट्राइब्यूटरी चेनाब के। इसके साथ साथ एक और जो आपको याद रखना है, दैट्स कॉल्ड एज बुरसर।
अगर बुरसर पूछे तो बुरसर इज ऑल्सो ऑन दिस, Bursar hydroelectric power project is also on this Marusudar river. This is also in Kishtwar. So remember this. This is very important that you have to remember. Salal hydroelectric project, Bagliar and Dulhasti. ये भी हम डिस्कस करेंगे, इन पे ऊपर भी क्वेश्चंस हैं. So don't skip here. Next question. Who proposed hydroelectric project? Which proposed hydroelectric project is said to be the largest in J&K on the Chenab River with a capacity of 1856 megawatt? कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ा होने वाला है, जो कि प्रपोज है अभी, सबसे बड़ा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी? उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1856 मेगावाट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट J&K की अगर हम बात करेंगे विद 1856 मेगावाट पावर कैपेसिटी, दैट विल बी योर सवालकोट. दिस इज सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चनाब. सो इसकी कैपेसिटी आपको कितनी दी गई है? 1856 मेगावाट. ये आपको याद रखना है. दिस इज सवालकोट. दिस इज लार्जेस्ट प्लानर जो कि चनाब रिवर पे बेस्ड है. तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the provided text, which is the only permitted storage type hydroelectric project under the Indus Water Treaty? Okay, तो आपको बताना है which is the only permitted. आपको बताना है कौन सा सिर्फ एक ही permitted हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि स्टोरेज टाइप है. अभी मैंने आपको बोला था कि इस यहाँ पे हम ज्यादातर रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट बनाते हैं. स्टोरेज टाइप प्रोजेक्ट का मतलब जहाँ पे आप डैम में पानी स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे अंडर इंडस वाटर ट्रीटी एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया के पास जिसको यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो पानी. एंड दैट इज कॉल्ड एज बुरसर. दैट इज कॉल्ड एज बुरसर. अगर आप इसको याद रखेंगे, दिस इज बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो. दिस इज द ओनली वन. लेकिन ये भी याद रखना एक्सेप्शन में पक्कल दुल जो है, दिस इज ऑल्सो स्टोरेज टाइप. पक्कल दुल भी ऐसा है, लेकिन दिस इज वेल रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर पहले से ही रिकॉग्नाइज हुआ है. तो इस पे मे बी ऑब्जेक्शन हो सकता है, बट दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ ऑब्जेक्शन नाउ, क्योंकि यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी हैं. सो रिमेंबर दिस फैक्टर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको बोला था, ये किस रिवर पे बेस्ड है? मारुसुदा रिवर पे, जो कि ट्राइब्यूटरी है चनाब की. Next question is, which two projects were inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on the same day, 12th of August 2014? This is back in 12th of August 2014, but here I'm not going to go into that. These two projects were inaugurated on the same day. This was Nimbo, Basgo and Chutak. These are the projects in Nimbo, Basgo and Chutak. These are the projects in Ladakh region. So remember this. These were inaugurated by on our PM Narendra Modi. So here the capacity is 45 megawatt. Both of these HEPs are 45 megawatt capacity. So remember this. Both of these, this itself is 45. This is itself in itself is 45 megawatt. So remember this as well. Next, the powerhouse of northern India is a term historically used to describe which region due to the untapped resources. Powerhouse of modern India. Yes, this is the term that is used to describe this J&K region. Before bifurcation, you can even use it now because there's not that much change. Only the UTs have been created, but the potential is there. Potential is there. जो मैंने अभी पहले भी बात की थी कि 20,000 मेगावाट पोटेंशियल जो है J&K और लद्दाख का टोटल मिला के हैं. तो इस पोटेंशियल की वजह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इसको कहा जाता है नॉर्थ पावर हाउस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. पावर हाउस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पूछा जा सकता है. Which of the following is not mentioned as a major challenge to hydroelectric development in the region? इनमें से कौन सा मेजर चैलेंज नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए? यू नो दैट due to tough terrain and topography, there are so many challenges to utilize or to harness all the potential of these projects that I have been discussing. The 20,000 megawatt potential we have this J&K UT and Ladakh UT, but it cannot be harnessed due to certain challenges like topography, challenges like tough terrain. So these are the challenges. But आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है कि जो चैलेंज नहीं है, is not mentioned as a major challenge, जो कि मेजर चैलेंज नहीं है. Geopolitical tensions under the Indus Water Treaty, this is a challenge, क्योंकि ये बार बार होती रहती हैं. अभी आपने देखा लास्ट ईयर इंडस वाटर ट्रीटी को ही फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया था. हार्श टेरेन एंड लॉन्ग विंटर्स, दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट चैलेंज. बहुत ज्यादा हार्श टेरेन है और विंटर्स काफी बड़े लॉन्ग विंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल होता है. लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग डैम्स, दिस इज नॉट द चैलेंज. लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है. टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है. सो दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन. और जो लास्ट वाला है लोकल अपोजिशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये चैलेंज है क्योंकि लोकल अपोजिशन काफी होता है. और एनवायरमेंटल ऑब्वियसली जो एनवायरमेंटलिस्ट्स होते हैं, जो एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा कंसर्न रहते हैं, दे विल ऑलवेज अपोज दिस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इनकी वजह से एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है. सो रिमेंबर दिस फैक्ट्स, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड यू कैन ऑलवेज चूज द राइट ऑप्शन. The Uj multipurpose project declared as a national project is located in which river basin? Uj multipurpose project की अगर हम बात करेंगे तो it is the only national project जो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, यानी कि J&K में. So ये किस बेसन पे बेस्ड है? This is from Ravi. So option number B would be the right option.
भुज की अगर हम बात करेंगे, ये एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि रावी बेसिन पे है और ये डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल प्रोजेक्ट। इस पे भी क्वेश्चन काफी बार बन चुका है, पहले भी आने वाला भी है, सो कीप इन माइंड। देन क्वेश्चन इज विच प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन जेकेपीडीसीएल एंड एनएचपीसी। सो आपको बताना है कौन सा इनमें से जॉइंट वेंचर है जिसको दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा एनएचपीसी। और इसमें शेयर भी बताया गया है कि 49% इसका है तो 51% शेयर इनका है। तो ये कौन सा पावर प्रोजेक्ट है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स यूजुअली बनते हैं ना मोस्टली उनमें एनएचपीसी और जेकेपीडीसीएल का ही हाथ होता है, बट समटाइम्स कोई थर्ड पार्टी भी आती है, जैसे पीटीसी इंडिया काफी सारे प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी जो कि जम्मू कश्मीर में बनते हैं। सो रिमेंबर दिस फैक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको याद क्या रखना है कि रैटले जो है, आई डोंट नो व्हाट विल यू प्रोनाउंस दिस, बट दिस इज रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये इसका आंसर रहेगा। ये इन दोनों की जो जॉइंट वेंचर है उन्हीं से ही तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखना है। कीरू, कुवार और पकलदुल, अगर इन तीन प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, कीरू, कुवार और पकलदुल, जो कि तीनों के तीनों कहाँ आते हैं, आपके किश्तवाड़ एरिया में आते हैं और इनमें पीटीसी इंडिया भी इन्वॉल्व है। पीटीसी इंडिया भी इन्वॉल्व है। रिमेंबर इनमें तीन तीन पार्टनर्स हैं, पीटीसी इंडिया, एनएचपीसी, जेकेपीडीसीएल, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन यहाँ जो रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसमें सिर्फ दो ही है, वन is JKPDCL, another is NHPC. Moving to the next question, following the 2019 reorganization, what is the approximate identified hydroelectric potential specifically for the Union Territory of J&K? ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि J&K में अगर हम देखेंगे बिफोर 2019 जब ये एक ही स्टेट था तब हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल था 20,000 मेगावाट्स। लेकिन जब J&K अलग हुआ और लद्दाख अलग हुआ तो अभी दिस इज अप्रोक्सीमेटली टोटल पोटेंशियल हमारे पास 18,000 मेगावाट है, जो कि J&K की बात हम करेंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस 3540? दिस इज द टोटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज बीन यूटिलाइज्ड। अभी तक इतना ही जनरेट हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हो। इफ द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट व्हाट इज द टोटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड, यहाँ व्हाट हैज बीन टोटल यूटिलाइज्ड सो फार, सो ये इतना रहेगा 3540 मेगावाट ही अभी तक हमने कैप कर चुके हैं, यानी कि इस पे इससे हमें पावर मिलता है। बाकी अभी तक अनकैप्ड है, बाकी अभी तक अनरियलाइज्ड है, हमने वो रियलाइज नहीं किया है। द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? वो आपको मिलेगा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सी रिवर पे है? किशन गंगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? नीलम रिवर है। क्या है? नीलम। और ये भी झेलम की ट्राइब्यूटरी है, नीलम रिवर, और ये झेलम की ट्राइब्यूटरी है, झेलम की ट्राइब्यूटरी है। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। और एक बात, ये सबसे हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है J&K में, हाईएस्ट यानी कि हाइट पे भी काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी 23.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल भी है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट, which organization under the Ministry of Power is the key player in developing hydroelectric power in their region? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को डेवलप करने के लिए इस रीजन में, स्पेशल J&K और लद्दाख के रीजन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा सामने आती है और की प्लेयर हैं? तो आपको मैंने अभी भी बताया, इसमें तीन हमारे प्लेयर्स हैं, JKPDCL, NHPC और PTC इंडिया। लेकिन इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है दैट इज NHPC, दैट इज योर NHPC। सो रिमेंबर दिस, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये इंपॉर्टेंट हर एक प्रोजेक्ट में काम करती है जो कि J&K और लद्दाख की बात करते हैं। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये चिनाब पे बेस्ड है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एक्चुअली JKSSB ने पहले भी पूछ लिया है। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, दिस इज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, दिस इज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक और चीज मुझे आप बताएंगे कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, कितना कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट इज, एज ऑफ 2025 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी? ये मैंने अभी आपको बताया 2025 तक की अगर हम बात करेंगे तो टोटल अभी तक है जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास जो है J&K में, वो है इन द यूटी ऑफ J&K दैट इज अराउंड 3540 मेगावाट्स। अभी मैंने ये बोला था आपको 3540 मेगावाट्स ही अभी तक हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूं 2019 के बाद से हमने 2026 मेगावाट्स इंस्टॉल किए हैं। लुक एट दिस, 2019 के बाद से सिर्फ पे 5-6 सालों में हमने इतना इंस्टॉल किया है। एंड बिफोर दैट what we had installed around 13-1400, that was really nothing। तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि कितना असर गवर्नमेंट का पड़ रहा है यहाँ पे। स्पेशली अगर हम बात करेंगे 2019 के बाद से काफी कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है। विच ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा? तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो उरी, ये आपको लद्दाख में तो नहीं देखने को मिलेगा। दुलहस्ती, ये भी नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बताया।
निम्बू बैसगो और चोटक जो 2014 में इनॉग्रेट किए गए थे, 45 मेगावाट्स के दोनों हैं। तो चोटक भी आपको वहां पे ही लद्दाख में देखने को मिलेगा। सो रिमेंबर दिस। सवालकोट के बारे में मैंने क्या बोला था? दिस इज हाईएस्ट प्रपोज्ड, यू कैन से लार्जेस्ट प्रपोज्ड एचपी इन जे, और इसकी इतनी मेगावाट्स की कैपेसिटी है, 1850 मेगावाट्स की कैपेसिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर विल कम नाउ मोर पॉइंट्स अबाउट द रिवीजन, सो रिमेंबर दीज फैक्टर्स एंड डू write in the comments if you remember all the facts. What is the significant feature of the proposed Kishangangai HEP mentioned in the key takeaways? Okay, तो किशनगंगा के बारे में हमने बात की, उसका क्या सिग्निफिकेंट फीचर है जो मैंने आपको बताया? डू टेल मी दैट, क्योंकि मैंने आपको पहले ये डिस्कस किया अभी जब हम किशनगंगा की बात कर रहे थे। इट विल बी द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन एशिया? नो, नॉट लार्जेस्ट, इट इज अ स्टोरेज टाइप तो है नहीं, बिकॉज ऑफ वाटर टीटी की वजह से स्टोरेज टाइप हम इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ झेलम बेसन। सो झेलम पे भी आप स्टोरेज टाइप में ये नहीं बना सकते। It is planned to have the longest tunnel of 23 point, it is not planned, it has now the longest tunnel of 23.5 किलोमीटर, जो मैंने अभी आपको बोला। एंड इट इज लोकेटेड ऑन रवि बेसिन। नो, रवि नहीं, ये झेलम के बेसिन पे आता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। वंस अगेन रिवीजन पॉइंट, द मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द चनाब रिवर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चनाब रिवर पे जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? चनाब रिवर पे जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? चनाब पे मैंने आपको बोला कि देयर आर 10 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो चनाब पे हैं। और ये मेजरली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है चनाब का? ये आता है आपका किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर हम किश्तवाड़ की बात करेंगे तो मैंने आपको अभी बोला था किश्तवाड़ में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दुलहस्ती है, किरू है, किवार है, ठीक है, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताए कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? किश्तवाड़ में। इसीलिए चनाब का जो मोस्टली जो हमें मिलता है चनाब के प्रोजेक्ट्स, वो आपको किश्तवाड़ के एरिया में मिलेंगे। यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स। अगर मैं बात करूं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं चनाब के जो कि रियासी में हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था सलाल। इसी तरह से उधमपुर में भी किलने करके एक प्रोजेक्ट आता है, वो भी आपको याद रखना है, उधमपुर में आता है। तो मोस्टली लेकिन ये कौन से एरिया में आते हैं? किश्तवाड़ वाले रीजन में, यानी कि किश्तवाड़ वाले डिस्ट्रिक्ट में। सो रिमेंबर दीज फैक्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोजेक्ट इज मेंशन्ड एज बीइंग शेयर्ड बिटवीन पंजाब एंड जे विद इट इज बेनिफिट्स प्राइमरली यूटिलाइज्ड बाय पंजाब? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो पंजाब और जे ने आपस में शेयर किया हुआ है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो शेयर हो रहा है पंजाब और जे के बीच। तो अगर इसकी बात करेंगे तो रावी बेसन में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रावी बेसन के जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, उनमें मोस्टली जो है वो शेयर होते हैं, क्योंकि रावी आपको पता है वो शेयर होते हैं बिटवीन पंजाब एंड रावी। हम बोलते हैं कि बाउंड्री पे बनाता है जे और पंजाब की। तो पंजाब और इसमें आपको आएगा रंजीत सागर, यानी कि थेन डैम। ये प्रोजेक्ट जो है दिस इज प्राइमरली, और इसके ऊपर सॉरी, ये जो प्रोजेक्ट हैं ये शेयर कर रहे हैं कौन कौन? आपका जे और पंजाब। इसके साथ साथ शाहपुर कांडी की भी अगर मैं बात करूं, ये भी शेयर हो रहा है जे और पंजाब में, जे एंड पंजाब। तो दोनों ये शेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था? विच प्रोजेक्ट इज मेंशन्ड एज बीइंग शेयर्ड बिटवीन, ओके, विच इज बेनिफिट प्राइमरली यूटिलाइज्ड बाय पंजाब, तो वो आपका रंजीत सागर डैम आएगा। शाहपुर कांडी भी हालांकि शेयर किया जा रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the Nimbu Basgo is considered as one of the highest in the world. In which district is it located? Nimbu Basgo जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? मैंने आपको पहले बताया था निम्बू बैसगो के बारे में कि ये 2014 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी, हमारे जो पीएम है अभी उन्होंने की थी। और अब आपको बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एक हाईएस्ट लोकेशन पे है, कंसिडर किया जाता है, लद्दाख का हिस्सा है ये। तो ये लेह वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आपको बस ये तो याद रखना है। और मैंने आपको इसका ये भी बताया था कि ये 45 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है टोटल, तो ये लेह में आता है। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। नेक्स्ट इज, विच प्रोजेक्ट इज द ओनली वन मेंशन्ड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द किलनई नाला ट्रिब्यूटरी ऑफ द चनाब? अभी मैंने बोला था चनाब के जो भी प्रोजेक्ट्स ज्यादातर हैं हमारे, वो आते हैं आपके किश्तवाड़ वाले एरिया में। लेकिन किलनई नाला पे एक वेस्ट प्रोजेक्ट है, उसका नाम आपको बताना है क्या है, ठीक है। किलनई जो है यहाँ पे है, किलनई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 48 मेगावाट का है, ये आता है इसका ऑप्शन सी। ये 48 मेगावाट का है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। तो ये भी चनाब पे बेस्ड है। तो रिमेंबर दिस एज वेल। Which joint venture project includes PTC India as 2% stakeholder alongside JKPDCL and NHPC? अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं JKPDCL और NHPC चलाते हैं, लेकिन PTC इंडिया थर्ड पार्टनर बनता है कुछ प्रोजेक्ट्स में। उनमें से एक है जिसमें PTC इंडिया का 2% शेयर है, वो कौन सा है? रेटले मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें सिर्फ ये दो ही है। रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें सिर्फ JKPDCL और ये दो है। बाकियों में आप बताइए इनमें से कौन सा है।
तो इसका जो है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि किश्तवाड़ में ही है, चनाब पे ही बेस्ड है। तो कीरू में क्या है, कीरू में पीटीसी इंडिया का 2% है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कीरू, क्वार और दुल्हस्ती। कीरू, क्वार और दुल्हस्ती, अगर आप ये याद रखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कीरू, क्वार और पकलदुल, सॉरी दुल्हस्ती नहीं, दिस इज़ पकलदुल। कीरू, क्वार और पकलदुल जो हैं, ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 3 पार्टनर्स हैं, जेकेपीडीसीएल, एनएचपीसी और पीटीसी इंडिया। सो रिमेंबर दिस एज़ वेल। What is the installed capacity of the Baghliyar HEP located in Ramban district? बगलियार प्रोजेक्ट जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उसकी इंस्टॉल्ड कितनी कैपेसिटी है? बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमारे पास, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? तो याद रखना है बगलियार कहाँ पे है? रामबन में। तो बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ रामबन याद रखना है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी है 900 मेगावाट्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 900 मेगावाट्स। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं और पूछ भी रहा है कंटिन्यू। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और रैटले जेके एसएसबी के फेवरेट्स हैं। All the mentioned hydroelectric projects in the Indus River Basin, Ladakh fall under which category? जो भी हमारे पास इंडस रिवर बेसन के प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये मैंने आपको अभी समझाया कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स हैं और वेस्टर्न रिवर्स हैं। ईस्टर्न रिवर जो भी हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं और वेस्टर्न रिवर जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर आते हैं। और वेस्टर्न रिवर्स में आपके पास हमेशा रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट्स ही बनते हैं और इंडस आपको पता ही है, दिस इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कल मैं पूरा लेक्चर आपको पढ़ा दूंगा जिसमें मैं सारे आर्टिकल्स, इंडस वाटर ट्रीटी में कितने आर्टिकल्स है टोटल वो भी बताऊंगा और कौन सा आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 2 ईस्टर्न रिवर्स के लिए, आर्टिकल 3 वेस्टर्न रिवर्स के लिए है, आर्टिकल 8 से क्या बनता है, इंडस वाटर कमीशन। सो ये हम कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो लेकिन अभी आप फिलहाल याद रखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। विच लीडर इनॉग्रेटेड दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन 26 अप्रैल 2007? दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन से लीडर ने 2007 में इनॉग्रेट किया था? तो 2007 की अगर आपको बात याद होगी, 2007 में हमारे जो पीएम थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। दिस इज 2007 दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इन साहब ने अपना इनॉग्रेट किया था। द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रो हाइड्रो पावर इन द रीजन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आपको बतानी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की कौन कौन सी हैं। एक इनमें से नहीं है जो आपका आंसर होगा, इंक्लूड्स ऑल, सब है लेकिन एक नहीं है जो आंसर होगा आपका, आपको वही ढूंढना है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ऑब्वियसली वी आर डूइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने का ही ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो डिपेंडेंस है हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे जैसे पेट्रोल पे इस पे, ये कम हो जाए। फैसिलिटेटिंग फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन, विल दिस कम अंडर द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन फैसिलिटेट करने में यस होगा, क्योंकि जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल को ये, तो वहां से जो पानी निकल के बचता है वो इरिगेशन में भी यूज हो सकता है और फ्लड कंट्रोल करने में भी। ऑब्वियसली आप डैम्स बना रहे हो, दे विल हेल्प इन फ्लड कंट्रोलिंग। अवॉइडिंग ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी सेंसिटिविटीज, ये तो छोड़ो फिलहाल। बूस्टिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हमारा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है जिसके लिए हम इनको यूज करते हैं, सॉरी इनको डेवलप करते हैं, मतलब इससे हमें क्या होगा, बूस्ट होगी हमारी रीजनल इकोनॉमी हो, चाहे ग्रोथ हो या एम्प्लॉयमेंट हो उस रीजन की, ये सब बूस्ट होगा। तो दीज आर ऑल, ये तो नहीं है। अवॉइडिंग ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी सेंसिटिविटीज, ये आप इसमें आराम से टिक कर सकते हैं कि ये इसका सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर हम हाइड्रो पावर की देखें उसमें ये नहीं आएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ द इंडस बेसिन पार्ट ऑफ जे&के यूटी? इंडस बेसिन पार्ट का कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको बताना। मैंने आपको पहले ही 4-5 का पोटेंशियल बताया, लेकिन आपको मैंने इंडस का नहीं बोला वहां पे जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन था, तो मैंने, दिस वाज द क्वेश्चन। सो अप्रोक्सीमेट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, मैंने आपको सारे वाटर सिस्टम्स का बोला, सबसे ज्यादा जो था 11,283, ये किसका था? चनाब का। चनाब का ये पोटेंशियल है। और 3,084 ये था हमारे झेलम का। 1608 की अगर मैं बात करूं ये आपके इंडस का है, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इंडस रिवर सिस्टम या इंडस बेसिन, जिसका पोटेंशियल इतना है डेवलप करने का, हम वहां पे इतना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस कैपेसिटी तक डेवलप कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज योर रावी। तो यहाँ पे सारे रिवर्स का पोटेंशियल दिया गया है। रावी का पोटेंशियल है 500 मेगावाट, इसका इंडस का है 1608, झेलम का इतना और इसका इतना। दिस कम्स नियर अराउंड 18,000 मेगावाट, जो कि टोटल है हमारे पास जे&के की कैपेसिटी। सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर, दिस एक स्लाइड में सारा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरी वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? उरी वन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका उरी का जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो हमेशा झेलम पे ही रहेगा। So remember this, this is located on the Jhelum River. Last question is, which of the following statements is true regarding the development of hydropower in Ladakh UT post 2019? 2019 के बाद लद्दाख यूटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इनको देखना है। इट हैज सीन मैसिव डेवलपमेंट विद ओवर 5,000 मेगावाट्स, ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना हुआ है, ठीक है। कोई 5,000 मेगावाट, वहाँ पे अभी जो कैपेसिटी है वो इवन 400-500 तक नहीं जा रही है, तो 5,000 मेगावाट्स कहाँ से इंस्टॉल हो जाएंगे?
सेवरल लार्ज स्टोरेज प्रोजेक्ट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। स्टोरेज प्रोजेक्ट्स आप लद्दाख वाले रीजन में बना ही नहीं सकते क्योंकि आपका इंडस बेसिन है वहाँ पे, और इंडस में आपको रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए। इंडस वाटर ट्रीटी के जो आर्टिकल्स हैं उनके तहत, सो इंडस वाटर ट्रीटी को हम वैसे भी कल फिर से पढ़ेंगे पूरा, उस पे उसका पोस्टमार्टम हम कल कर देंगे। द पोटेंशियल रिमेन्स हाई 20,000 मेगावाट बट डेवलपमेंट इज नेग्लिजिबल। जो हमारा यूटी ऑफ लद्दाख है उसका पोटेंशियल कितना था? मैंने आपको बोला था टोटल जे&के और लद्दाख का मिला के पोटेंशियल है इतना, लेकिन सिर्फ 2000 है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इट्स पोटेंशियल इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर इन यूटी लद्दाख पोस्ट 2019? ओके, इज ट्रू, इट्स पोटेंशियल नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द पोटेंशियल रिमेन्स हाई बट डेवलपमेंट इज नेग्लिजिबल, ये ठीक है क्योंकि पोटेंशियल की बात करेंगे तो 2000 मेगावाट है, हालाँकि 20,000 नहीं है, अभी सिर्फ 2000 है, पोटेंशियल काफ़ी है, बट डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ, नेग्लिजिबल है, तो ये वाला तो ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। ये तो नहीं है क्योंकि थोड़ा-सा गवर्नमेंट उस पे देख भी रही है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, पोटेंशियल है बट डेवलपमेंट नेग्लिजिबल है, सो रिमेंबर दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा ये पूरा वीडियो, देन यू कैन हिट योर लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू नीड एनीथिंग लाइक पीडीएफ और एनीथिंग एल्स, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम। टेलीग्राम भी इसी नाम से है, AR प्रवाज अकेडमी के नाम से, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रिगार्डिंग द टेस्ट्स, टेस्ट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट में, वो मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे भी। सो हाई क्वालिटी टेस्ट मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ ये फैक्ट्स रिवाइज कीजिए, और जितना आपसे कहा जा रहा है यानी कि जो आपका सिलेबस है जेके एसएसबी की ओर से, तो उस सिलेबस को आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू।